place of dot I am writing cross. Reduction to one body problem, two body central force problem. Two body means two particles. So two particles अगर एग्जीक्यूट करते हैं सेंट्रल फोर्स तो उसको वन पार्टिकल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इट मीन्स दैट टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम हाउ कैन वी रिड्यूस टू द वन बॉडी प्रॉब्लम. मतलब दो पार्टिकल है, उस दो पार्टिकल के सेंट्रल फोर्स मोशन को एक पार्टिकल के प्रॉब्लम में कैसे रिड्यूस करेंगे. दैट इज टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम. अभी तक हमने सेंट्रल फोर्स देखा, सेंट्रल फोर्स के प्रॉपर्टीज देखे, सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल्स देखे. अब जो पढ़ेंगे कि टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को रिडक्शन कैसे करेंगे वन बॉडी प्रॉब्लम में. ओके, सो टू बॉडी प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करेंगे वन बॉडी पर, मतलब दो पार्टिकल के मोशन को, सेंट्रल फोर्स मोशन को कैसे हम वन पार्टिकल के सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे. ओके, टू को कैसे वन में रिड्यूस करेंगे, टू बॉडीज को, टू पार्टिकल्स को कैसे वन पार्ट, टू मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स को कैसे सिंगल पार्टिकल मोशन में हम रिड्यूस करेंगे, वो हम देखने वाले हैं. टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम एंड रिडक्शन टू वन बॉडी प्रॉब्लम. ओके, सो डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा. ओके, तो पहले डायग्राम देखना. सो ये सपोज करो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड, और ओ इज ओरिजिन. O is origin and x, y, z are axes. So this is Cartesian coordinate system. X, y, z are axes and O is origin. Okay. Suppose this is the particle. Two body problem मतलब दो particles की बात करेंगे हम, और उस दो particles के motion को कैसे one particle में convert करेंगे वो देखेंगे हम. Okay. So x, y, z are Cartesian coordinate system and O is origin of the system. Okay. So this is the particle having mass m1 or this is the particle having mass m2. It means we are taking two particle system because we are saying that two body central force problem. That's why we have taken two particles. If suppose m1 is the mass of this particle and m2 is the mass of this particle. Okay. Now suppose this is the distance between origin to the position of the particle having mass m2, that is position vector. If suppose r2 corresponds to the position vector of particle having mass m2 and r1 is the position vector corresponds to the particle having mass m1. Okay, what is position vector? Distance between origin and to the position of the particle, that is called position vector. So r2 is the position vector of mass particle having mass m2. r1 is the position vector of particle having mass m1. And if suppose I will join these two particles and this I can say that's r. So r is the position vector. Okay, the position vector of mass m2 with respect to m1. So distance between m1 and m2 can be represented in terms of position vector r. So r is the position vector, okay, position vector of mass m2 with respect to m1. So this is r. Okay, so this is r2 is position vector of particle of having mass m2. r1 is the position vector of a particle having mass m1 and r is the position vector of particle m2 with respect to m1. So this is r. Okay, so suppose this is the line joining or this is the vector joining from of mass m2 and m1. If I will consider this is the center. Okay, so this is center. Suppose this is the center, this is the center. So this is the vector joining of mass m2 to m1 and this is the center. So this center is called center of mass. अब तुम बोलोगे सेंटर ऑफ मास कहां से आया? इफ सपोज यहां पे मास m1 है, ओके, यहां पे मास m2 है, और इन दोनों के बीच में इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास. तुमको पता है सेंटर ऑफ मास, तुमने 12th में पढ़ा है. सेंटर ऑफ मास होता है द मास ऑफ द सिस्टम, ओके, वेयर द सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर ऑल मास, होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड. ओके, तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम इज कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, सो ये है सेंटर ऑफ मास. ओके, सो ये है m2 और ये है m1 और उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में. सो दिस एट द सेंटर देयर इज अ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मीन्स द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द सिस्टम, जैसे 5 पार्टिकल है और 5 पार्टिकल्स है तो 5 पार्टिकल्स का अलग अलग मास होगा, लेकिन उसके सेंटर में सारे पार्टिकल्स का मास कॉन्सेंट्रेट होगा. जैसे हम बोलते हैं कि एटम का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस के अंदर. एटम्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन एटम्स क्या है? एटम क्या है? मैक्सिमम एटम्स में एम्प्टी स्पेस है, तो एटम्स का सारा मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस. तो एटम्स में वजन कहां से आता है? न्यूक्लियस से.
बिकॉज न्यूक्लियस सेंटर में उसका मास कंसेंट्रेट। वैसे ही अगर बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम्स है, 100 पार्टिकल्स है, तो 100 के 100 पार्टिकल्स का मास एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कंसेंट्रेट होगा। उस पर्टिकुलर पोजीशंस को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। यहां दो मासेस है, इन दोनों मासेस का जो भी एवरेज मास होगा, इन दोनों मासेस का जो भी ज्यादा मास होगा वो कहां कॉन्सेंट्रेट होगा? एट सेंटर पॉइंट। If suppose this is the center of mass where all mass of these two system particles is concentrated, this is yellow point is center of mass, and the line joining this yellow point to origin O, suppose this is R, the position vector, capital R. Suppose this capital R is the position vector of center of mass. So R1 is position vector of particle having mass M1. R2 is position vector of particle having mass M2, but capital R is the position vector of center of mass. Capital R is position vector of center of mass. Okay, so अभी मेरा माउस एरो देखो, this is O, M2, M1 and again O. So it constitute a triangle. This is the triangle. So the vector, okay, the direction of vector R2 is this, from O to M2. The direction of vector R is from M2 to M1, but the direction of vector R1 is from O to M1. Okay, so this is the triangle. So I can apply the triangle law of vector addition because there are three vectors, vectors R2, vector R and vector R1. So R2 का डायरेक्शन कहां से कहां है? O से M2 तक। R का डायरेक्शन कहां से कहां है? M2 से M तक। और वापस R1 का डायरेक्शन कहां से कहां है? O से M1 तक। सो इन दिस ट्रायंगल आई कैन अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? जो दो वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम है, R2 प्लस R, सो R2 प्लस R इज इक्वल टू R1, क्योंकि R1 का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो द एडिशन ऑफ R2 प्लस R इज इक्वल टू R1 बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ R2 एंड R इज सेम, but direction of R1 is opposite, so R2 plus R is equal to R1. So according to the triangle law of addition, R2 plus R is equal to R1. So in this equation, if I shift this R2 to right hand side, then R is equal to R1 minus R2. तो कहां से आया R is equal to R1 minus R2? From triangle law of vector addition. So triangle law of vector addition तुमने 12th में ही पढ़ा है, इसको याद रखना है। So from the figure, from triangle law of vector addition, I got R is equal to R1 minus R2। हो गया, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो इसी अभी ये डायग्राम मैंने समझा है, इसी को मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं। ओके, आई एम राइटिंग इन वर्ड्स। तो वर्ड्स में कैसे लिखना है? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास M1 एंड M2। ओके, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास M1 एंड M2 हैविंग पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2। ये जो मैंने डायग्राम में बताया वही इसको वर्ड्स में लिखा। सेकेंड, consider R with the position vector of mass M1 with respect to M2 from figure. Okay, this is R. This R is the position vector of M1 with respect to M2. So line joining between M1 and M2, that is can be represented in terms of vector R. तो from figure तुमको पता है R is equal to R1 minus R2, ये मैंने बताया। According to triangle law of vector addition, R is equal to R1 minus R2. So if I consider this as equation number 1, अभी हम क्या कर रहे हैं? टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं, टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को रिड्यूस कर रहे हैं वन बॉडी प्रॉब्लम में। सो व्हाइल रिड्यूसिंग टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम, आई शुड कैलकुलेट और आई शुड डिराइव द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम। सो ये सब चीजें किस पे डिपेंड है? लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम पे। अगर मुझे टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो मुझे लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम? टीवी, टी माइनस वी। यू नो दैट लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय L इज इक्वल टू टी माइनस वी। और अगर तुमको लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम पता चलेगा, ओके, अगर तुम लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम निकालोगे तो तुम टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में इजीली रिड्यूस कर सकते हो। सो यू शुड बी ओके, यू शुड नो or you should calculate or you should derive the Lagrangian of this system, this two mass system, two body system. Okay, so Lagrangian of the system is L is equal to TV, T minus V. T क्या है? Kinetic energy.
V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये मैं बार बार बता रहा हूं, जब हम पूरा लैग्रेंजियन डायनामिक्स यूनिट नंबर 2 का पढ़ रहे थे तो लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, एंड लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज L इज इक्वल टू TV, T माइनस V, T इज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, V इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये याद है, ये मैं बार बार बताएं, ये तुमको पता होगा। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो लैग्रेंजियन निकल जाएगा, और लैग्रेंजियन निकाल लिए तो तुमको टू बॉडी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सो तुमको क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमको पता है, हाफ mv²। ओके, सो यहाँ कितने पार्टिकल्स है? 2 पार्टिकल्स है, तो 2 पार्टिकल्स होंगे तो 2 काइनेटिक एनर्जीज होगी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब दोनों को एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ कौन सा पार्टिकल है? पार्टिकल हैविंग मास m1, particle having mass m2. Okay, so kinetic energy correspond to the particle having mass m1 is half m1 v1 square, क्योंकि kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? half mv square. So kinetic energy corresponds to a particle having mass m1 is half m1 v1 square. So kinetic energy, similarly the kinetic energy correspond to the particle having mass m2 is half m2 v2 square. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमको पता है, तो मास m1 की करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर। मास m2 की करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m2 v2 स्क्वायर, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर देंगे तो निकल गई काइनेटिक एनर्जी मेरी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल सिस्टम वुड बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। Okay, so kinetic energy that can be represented in terms of capital T. So kinetic energy of the system will be half m1 v1 square, v1 के ऊपर वेक्टर दिया है क्योंकि वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, हाफ m1 v1 square प्लस हाफ m2 v2 square. Half m1 v1 square is the kinetic energy correspond to the particle having mass m1. Half m2 v2 square is the kinetic energy correspond to the particle having mass m2. Okay, so these are the two kinetic energies. Okay, now look at this step. In place of v1 I have written r1 dot. You know that velocity is the rate of change of position vector. Velocity is rate of change of position vector, and dr by dt means r dot. In classical mechanics, time derivative can be represented in the form of dot. So dr by dt can be represented or can be written as r dot. Okay, vector r dot. Okay, r dot vector. So here in v1, in place of v1 I can write as r1 dot. Okay, in place of v2 I can write as r2 dot, because v is equal to dr by dt and dr by dt means r dot. Okay, so in place of v1 I have written r1 dot, in place of v2 I have written r2 dot. So it will become half m1 r1 dot square, वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर है इसलिए वेक्टर भी लगा है उसमें, हाफ m1 r1 डॉट वेक्टर स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 वेक्टर, ओके, r2 डॉट स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया t इज इक्वल टू हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। Okay, if you want to calculate the kinetic energy of this two body system, you should know about the r1 dot and r2 dot. अभी इसमें मास तो कांस्टेंट है, सो अगर तुमको ये काइनेटिक एनर्जी निकालना है इक्वेशन नंबर 3 से, तो तुमको r1 डॉट और r2 डॉट निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना काइनेटिक एनर्जी कितनी है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द r1 डॉट एंड r2 डॉट। अगर r1 डॉट और r2 डॉट तुमने निकाल लिया, तुम्हारा प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो रहा है। सो इन इक्वेशन नंबर 3 यू शुड कैलकुलेट r1 डॉट एंड r2 डॉट। ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी की बात। नाउ अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन ओनली द पोजिशन r। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किस पे डिपेंड करती है? पोजिशन पे डिपेंड करती है, दिस इज r पे डिपेंड करती है। ओके, सो यहां क्या है, दो पार्टिकल्स है m1 एंड m2, और दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। ठीक है, m1 देखो, m1 का सेपरेट पोजीशन वेक्टर r1 है, m2 का सेपरेट पोजीशन वेक्टर r2 है, लेकिन दोनों का एक कॉमन पोजीशन वेक्टर है जो मैंने बताया था कि m1 और m2 के लाइन जो ज्वाइन करती है डायग्राम में, सो दैट इज नथिंग बट दी वेक्टर r। फिर से मैं डायग्राम बता रहा हूं, ये देखो, m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2, लेकिन m1 और m2 ये जो दो लाइन ज्वाइन कर उसका पोजीशन वेक्टर r है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड अपॉन r।
because R is common position vector between m1 and m2. So the potential energy of the system depends on R. So U मैंने इसलिए लिखा, V is the common symbol for potential energy, but here are two particles और दोनों पार्टिकल का कॉमन पोजिशन वेक्टर R है, तो इसलिए मैंने U के टर्म्स में पोटेंशियल एनर्जी लिखा. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू बॉडी सिस्टम वुड बी UR. ओके, सो ये कॉमन सिंबल है, यहाँ पे मैंने सिंबल बदल दिया, U लिखा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टू बॉडी सिस्टम, और टू बॉडी सिस्टम और टू पार्टिकल्स का कॉमन पोजीशन वेक्टर R है. सो द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन दिस पोजीशन वेक्टर R. सो इफ सपोज दिस इज इक्वेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई हमारी. सो V इज इक्वल टू UR, ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गई. अब हमको काइनेटिक एनर्जी का ये देखो इक्वेशन नंबर 3 देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 डॉट स्क्वायर, ये पता है, बट r1 डॉट और r2 डॉट निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का प्रॉब्लम ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी R पे डिपेंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी UR रहेगी होल सिस्टम की. सो अभी काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालना है, तो मुझे r1 डॉट और r2 डॉट निकालना है. तो अब देखेंगे कैसे निकालते हैं. ओके, सो ये अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई. तो दोनों को मैं क्या करूंगा, लैग्रेंजियन इक्वेशन में रख दूंगा. तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, L इज इक्वल टू T माइनस V. काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला एक्सप्रेशन से, हाफ m1 r1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 डॉट स्क्वायर, और V क्या है UR. तो T और V की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में. ओके, so putting the values of equation number 3 and 4 means putting the values of kinetic energy, formula of kinetic energy and potential energy to equation number 2. So Lagrangian will be T minus V. Okay, half m1 r1 dot square plus half m2 r2 dot square minus UR. UR is the potential energy, T minus V. So ये इक्वेशन नंबर 5 है. अभी भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ये मैंने लैग्रेंजियन निकाला, काइनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, लेकिन अभी भी हमको जो पता बचा हुआ है वो चीज बची हुई है r1 डॉट और r2 डॉट, ये निकाले बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम क्या है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस. ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी correspond टू द पार्टिकल हैविंग मास m1, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी correspond टू द मास m2, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो T माइनस V, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, एंड दिस इज द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम. अभी भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, r1 डॉट और r2 डॉट की वैल्यू निकालनी है हमें. ओके, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर तुमको समझ में आ गया कि r1 डॉट, ओके, इफ यू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू डिराइव r1 डॉट, देन यू कैन इजीली डिराइव r2 डॉट. r1 डॉट और r2 डॉट डिराइव कर लिया तो प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा ये. ठीक है, सो ये सेंटर ऑफ मास समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं. ये देखो, ये सीसॉ, तुमने गार्डन में सीसॉ देखा होगा, एक ऊपर बैठता है एक नीचे बैठता है, जिसका वजन कम होता है ऊपर जाता है, ऊपर नीचे. लेकिन अगर ये सीसॉ का सिस्टम जो है उसका सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहता है सेंटर पे. अगर ये दोनों बच्चे उड़ गए, ओके, अगर ये 2 पर्सन्स उड़ गए तो एकदम ये बैलेंस हो जाता है बीच में, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट रहता है, इस सेंटर पे. ओके, तो सेंटर ऑफ मास इज हियर. सो सेंटर ऑफ मास समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल मैंने एक फोटो में तुमको बताया. तो दिस इज सीसॉ, तुमने गार्डन में या ये इसको देखा होगा, इसको बोलते हैं सीसॉ. ओके, और ये जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास. ओके, और देखो मैंने अभी बताया था डायग्राम में, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैपिटल R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. और 12th में तुमने पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एक फॉर्मूला होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का. ओके, ये R क्या है, देखो फिर से डायग्राम दिखा रहा हूं, फिर से डायग्राम बता रहा हूं. ये R क्या है, capital R is the position vector correspond to the center of mass, capital R. So this capital R can be given as by this formula. That is the center of mass formula. This R is the position vector of center of mass. That is nothing but, because we are talking about the two particle system, two body system. So m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. This is the equation number 6, and you might have studied or you might have seen this formula in your 12th standard while studying the rigid body and rigid body motion. The position vector correspond to the center of mass can, if there are two particle system, अगर वहां पे सिर्फ दो particles है और
दो बॉडीज हैं तो सेंटर ऑफ मास और द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m1r1 प्लस m2r2 ओके डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ओके सो दिस वुड बी द पोजीशन वेक्टर करस्पॉन्ड टू द सेंटर ऑफ मास। अब ये चीज मुझे क्यों निकालनी, ये चीज मुझे क्यों पता होनी चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास और डायग्राम में हमने सेंटर ऑफ मास को दिखाया है, तो इसलिए मुझे यह पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं उसको। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 और m2। सिर्फ m1 m2 इसलिए लिखा क्योंकि दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब मेरा टारगेट क्या है, r1 डॉट और r2 डॉट निकालना। ओके so from diagram we know that r is equal to r1 minus r2 from equation number 1 और from diagram में से मैंने triangle law of vector addition समझाया, उसमें से हमको r क्या मिला, r is nothing but vector, r is nothing but r1 vector minus r2 vector, ये मुझे पता है। ओके r is nothing but r1 vector minus r2 vector from figure और from equation number 1। ओके तो इसमें से मैं r2 निकाल सकता हूँ, r2 को मैंने लेफ्ट में ट्रांसफर किया और r को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो r2 जब लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव r2, और जब r लेफ्ट राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो इन दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन ओके फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड आउट r2 is equal to r1 minus r। I have shifted r2 to left hand side and r to the right hand side, so r2 is equal to r1 minus r। So r2 is equal to r1 minus r2, put this value in equation number 6 because equation number 6 r2 is there, so in place of r2 I will put r1 minus r। So putting the value of r2 in equation number 6, so equation number 6 में लिख r2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। So r2 की वैल्यू पुट करने के बाद this in place of r2 I have substitute r1 minus r because r2 is r1 minus r। So ये r2 की जगह माउस का एरो देखो मेरा, इस r2 की जगह मैंने r1 minus r को रखा, ठीक है। सो फिर से सेकंड स्लाइड में यही इक्वेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो इस r2 की जगह r1 माइनस, तो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, सो दिस विल बिकम m1r1 प्लस m2r2, दिस इज द कॉमन मल्टीप्लीकेशन, m2r2 माइनस m2r। ओके सो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 माइनस m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ आई विल शिफ्ट दिस m1 टू m2 टू लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो m1 और m2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या होगा, r वेक्टर r इंटू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइंग बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 माइनस m2r। अब ये टर्म को देखो, m1r1 प्लस m2r2 r1, सो r1 कॉमन, हियर इज m1r1 प्लस m2r1, so r1 is common, so after taking r1 common, r1 vector common, so I will get in the bracket m1 plus m2, so I am taking r1 vector as a common minus m2 into r। okay so अब क्या कर रहा हूँ, this m2r I will shift to the left hand side। okay so this m2r I will shift to the left hand side, so it is negative, so after shifting to the left hand side it will become positive, so it will become positive, so r into m1 plus m2 plus m2 into r is equal to r1 m1 plus m2। okay so अब इस इक्वेशन को मैं सिंपली लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन क्या, a is equal to b, तो b is equal to a लिख सकते हैं ना इसको। दिस सपोज दिस इज a is equal to b, it can write as b is equal to a, so लेफ्ट को मैं राइट में लिख रहा हूँ, राइट को मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ। so r1 m1 plus m2 is equal to r m1 plus m2 plus m2r, just I am just exchanging the terms, here is a is equal to b, it can write as b is equal to a, right। a equal to b को b equal to a लिख सकते हैं, जैसे 2 equal to 2 रहता है तो 2 equal to 2 होता है, उसको इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। ये मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स तो आता होगा। If you don't know about the basic mathematics, then contact me immediately। okay so r m1 plus m2 plus m2r is equal to r1 m1 plus m2, just I am exchanging the terms because a equal to b is b equal to a, r1 m1 plus m2 is equal to r m1 plus m2 plus m2r। okay now just this is the dividing by m1 plus m2 on both sides। okay divide करेंगे m1 plus m2 से, तो
ओके, दिस सेम एक्सप्रेशन डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 ऑन बोथ साइड. सो m1 प्लस m2 से यहाँ से डिवाइड करूंगा तो यहाँ m1 तो कैंसिल होगा. डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 यहाँ करूंगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2, सो यहाँ नीचे आए. तो ये जो m1 प्लस m2 इसको इधर शिफ्ट करूंगा, मतलब डिवाइड कर दिया मैंने दोनों टर्म्स को. ओके, सो डिवाइडिंग बाय m1 प्लस m2 ऑन बोथ साइड आई विल गेट दिस एक्सप्रेशन. Now m1 plus m2 in the numerator and here m1 plus m2 in denominator, it can be cancel out. ओके, ये कैंसल आउट हुआ तो बचा क्या हमारे पास, r1 वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल R वेक्टर प्लस m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो ये मुझे मिल गया r1. बट मुझे r1 नहीं चाहिए भाई, मुझे r1 डॉट चाहिए. r1 और r1 डॉट में क्या फर्क है, r1 है सिंपल पोजिशन वेक्टर, r1 डॉट इज इट्स टाइम डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो r और r डॉट में क्या फर्क है, r इज सिंपल पोजिशन वेक्टर एंड r डॉट इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो मुझे यहाँ पे r1 मिल गया, तो मुझे क्या चाहिए r1 डॉट. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अबव इक्वेशन, r1 बिकम r1 डॉट, r बिकम r डॉट एंड हियर r बिकम r डॉट. सो सब में डॉट लग जाएगा. क्यों डॉट लगेगा, बिकॉज आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t. और तुम बोलोगे m1 और m2 के ऊपर डॉट क्यों नहीं लगा, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट. ओके, तो कांस्टेंट एज इट इज ही रहेगा. ओके, और उसके साथ जो भी पोजीशन वेक्टर्स है उसको डॉट लग जाएंगे, बिकॉज आई एम डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो r1 बिकम r1 डॉट, r बिकम r डॉट एंड r बिकम r डॉट. ओके, सो r1 डॉट इज इक्वल टू r डॉट प्लस m2 r डॉट m1. तो निकल गया मेरा r1 डॉट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7. जो मुझे r1 डॉट चाहिए था वो r1 डॉट मिल गया. अब मैं निकालूंगा r2 डॉट. सिमिलर प्रोसीजर, कुछ भी चेंज नहीं है, सिमिलर प्रोसीजर है. सिमिलर प्रोसीजर से मैं r2 निकालने वाला हूं. ओके, आई कैन फाइंड आउट r2 विथ सिमिलर प्रोसीजर एंड अगेन r2 डॉट. सो r1 निकाला फिर r1 डॉट निकाला. अब मैं r2 निकालूंगा फिर r2 डॉट निकालूंगा. ठीक है, सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 7 से मुझे पता चला कि r1 डॉट क्या है. r1 डॉट इज इक्वल टू r डॉट plus m2r dot divided by m1 plus m2. So this is the equation number 7. Now I will find out r2 dot. But we know that r is equal to r1 minus r2 from figure or from equation number 1 by vector law of vector addition. ये मैंने बताया था, r is equal to r1 minus r2. So यहाँ से मैं r1 निकालूंगा तो r2 को अगर मैं शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, so it will become r1 is nothing but r2 plus r. ये R2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो R2 प्लस R. सो R1 कैन बी रिटर्न एज R2 प्लस R फ्रॉम, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ओके, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. फिगर में देखा था हमने R इज इक्वल टू R1 माइनस R2. सो इसमें से मैं क्या निकालूंगा, R1. सो R1 अगर मैं यहाँ रखता हूँ और R2 को उधर शिफ्ट करता हूँ तो R2 प्लस R होता है. सो यहाँ से मुझे पता चला R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R. ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6. अब इक्वेशन नंबर 6 क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 6 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये मैं दिखा रहा हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. ओके, सो इक्वेशन नंबर 6 में जब मुझे r2 डॉट निकालना था, जब मुझे r1 डॉट निकालना था तो मैंने r2 की वैल्यू पुट की थी ये वाली इक्वेशन नंबर 6 में. लेकिन अभी मुझे r2 डॉट निकालना है तो मैं r1 की वैल्यू पुट करूंगा. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सो आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ r1 हियर. ओके, सो देखो फिर से उसी स्टेप पे आते हैं हम. ओके, नाउ वी नो दैट r1 वेक्टर इज इक्वल टू r2 प्लस r. और इस r2 प्लस r मतलब r1 वेक्टर की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 6 में रख रहा हूं. ओके, सो पुटिंग, देखो इक्वेशन नंबर 6 में r1 की जगह मैंने लिखा r2 प्लस r. अभी मैंने इक्वेशन नंबर 6 लगाया, यहाँ क्या था r1, m1 r1 प्लस m2 r2 m1 प्लस m2. ओके, ये था इक्वेशन नंबर 6. सो इन प्लेस ऑफ r1 आई हैव पुट r2 प्लस r. तो r2 प्लस r रख दिया उसमें, बाकी सेम. सो इसको ट्रिक याद रखो, अगर तुमको r1 निकालना है तो r2 की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 6 में. अगर तुमको R2 निकालना है तो R1 की वैल्यू पुट करनी है. तो ट्रिक क्या है, अगर तुमने R1 डॉट निकाल लिया, R1 डॉट निकाल लिया तो R2 डॉट इजीली निकाल सकते हो. सो R1 डॉट निकालने के लिए R2 की वैल्यू रखनी है इक्वेशन नंबर 6 में, और R2 डॉट निकालना है तो R1 की वैल्यू रखनी है. ठीक है, सो
the value of R1 is nothing but R2 plus R. So you have to put the value of R1, that is R2 plus R, in equation number 6. So after putting the value of R1, that is R2 plus R in equation number, तो R1 यहाँ क्या था, M1 R1 plus M2 R2 अपॉन M1 plus M2. तो R1 की जगह मैंने क्या लिखा, R2 plus R. सो अगर तुमको R2 डॉट निकालना है या R2 निकालना है तो R1 की वैल्यू रखनी है, अगर R1 निकालना है तो R2 की वैल्यू. सो पहले हमने R1 निकाला, मतलब R1 डॉट निकाला, तो उसमें R2 की वैल्यू रखी. सो अभी मुझे क्या निकालना है, R2 या R2 डॉट, तो मैं R1 की वैल्यू रखूंगा. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन गेट R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R. सो ये इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 6 में रख दिया, R1 की वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन नंबर 6. सो वी विल गेट R वेक्टर इज इक्वल टू M1 R2 प्लस R प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. सेम स्टेप, और सेम स्टेप में अभी मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा. सो आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट एंड आई विल शिफ्ट दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो R डॉट M1 प्लस M2 M1 R2 प्लस R प्लस M2 R2. तो ये शिफ्ट, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर लेके गया M1 प्लस M2 को. सो आई विल गेट R into M1 plus M2 is equal to M1 R2 plus R plus M2 into R2. Now we'll open this bracket. So after opening the bracket, R into M1 plus M2 is equal to M1 R2 plus M1 R plus M2 R2. तो ये ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, तो इस तरीके से मुझे चीजें मिली. ओके, सो ये स्टेप पे आ गया मैं. R into M1 plus M2 is equal to M1 R2 plus M1 R plus M2 R2. Okay, now see this. Here is R2, here is R2. So R2 is common. Here is M1 R2, here is M2 R2. R2 common. So we'll get M1 plus M2. So R M1 plus M2. Here R2 common. यहाँ से R2 common लिया. So M1 plus M2 plus M1 into R. तो ये मिल गया. Now dividing by M1 plus M2 on both sides. Same procedure. जैसे वो समझाया, ये भी सेम प्रोसीजर है. इसमें हमको R2 निकालना है, वहां हमने R1 निकाला. सो डिवाइडिंग बाय M1 प्लस M2 ऑन बोथ साइड. सबसे पहले डिवाइड करने के पहले इस टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में, इस टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द R2. ओके, सो आई एम शिफ्टिंग दिस टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो इट विल बिकम R M1 प्लस M2 माइनस M1 R is equal to R2 M1 plus M2. Now I have to find the R2. I have to find the R2. So this is A equal to B. A equal to B can be written as B equal to A. So terms को exchange कर रहा हूँ. So it will become R2 M1 plus M2 is equal to R M1 plus M2 minus M1 R. Just term को exchange कर रहा हूँ because A equal to B can be written as B equal to A. हो गया. So अब मुझे क्या निकालना है, R2. So dividing by M1 plus M2 on both side. So after dividing M1 plus M2 on both side, I will get R2 here is equal to R M1 plus M2 divided by M1 plus M2 minus M1 R divided by M1 plus M2. Now M1 plus M2 here is in numerator, here is in denominator. So it will be cancelled out. So I will get R2 is equal to R vector minus M1 R divided by M1 plus M2. So this is, सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर जो भी है, ये मिल गया मुझे R2 की वैल्यू. ओके, तो R2 की वैल्यू मुझे मिल गई. R2 इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस M1 R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. लेकिन मुझे क्या चाहिए, R2 डॉट चाहिए. ओके, R2 की वैल्यू मिल गई, उसको डॉट में करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था वैसे ही. सो आफ्टर डिफरेंशिएट R2 बिकम R2 डॉट, R बिकम R डॉट, एंड हियर R बिकम R डॉट, और M1 M2 कांस्टेंट है तो उसको डॉट में नहीं लिखते. Okay, so differentiate with respect to t, so I will get R2 dot is equal to R dot minus M1 R dot divided by M1 plus M2. This is the equation number 3. This is the equation number 8. So equation number 7 में मुझे R1 dot की वैल्यू मिली, इक्वेशन नंबर 8 में मुझे R2 डॉट की वैल्यू मिली. अब दोनों R1 और R2 डॉट की वैल्यूज को लैग्रेंजियन में रख देंगे. ओके, लैग्रेंजियन के काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में रख देंगे. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 डॉट एंड R2 डॉट फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 टू द इक्वेशन 5. अब इक्वेशन 5 कौन सा है, फिर से मैं इक्वेशन नंबर 5 दिखा रहा हूं. ओके, सो इक्वेशन नंबर 5 देखो, इक्वेशन नंबर 5 क्या था. ओके, आई एम शोइंग यू द इक्वेशन नंबर 5. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5. L is equal to half M1 R1 dot square plus half M2 R2 dot square minus potential energy. So यहाँ R1 dot है, यहाँ R2 dot है.
सो R1 और R2 की जो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 5 में रख देंगे, मतलब R1 डॉट की जगह वो वैल्यू जो हमारी आई, R2 डॉट की जगह ये वैल्यू, वो जो वैल्यू आई. ओके, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 डॉट एंड R2 डॉट इन इक्वेशन नंबर 5 मीन्स द इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजियन. सो लैग्रेंजियन इक्वेशन में हम R1 और R2 की वैल्यूज रखेंगे. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 डॉट and R2 dot from equation 7 and 8 in equation number 5. So after putting, देखो half m1 R1 डॉट की जगह ये वाली वैल्यू रख दिया, R1 डॉट की जगह R डॉट प्लस M2 R डॉट M1 प्लस M2 होल स्क्वायर प्लस हाफ M2, R2 डॉट की जगह ये जो वैल्यू आई हमारी R डॉट माइनस M1 R M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी. तो इतना बड़ा इक्वेशन बन गया हमारा. अब देखो ब्रैकेट के अंदर देखो, ये A है और ये B है, A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हाफ M2, ये A है और ये B है, A माइनस बी का होल स्क्वायर. सो A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर. A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर. सो ये फॉर्मूले को हम इजीली कैलकुलेट, A स्क्वायर मतलब R डॉट स्क्वायर, ओके, प्लस ट्वाइस AB मतलब 2 इंटू R डॉट इंटू M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस B स्क्वायर मतलब M2R डॉट M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे भी A माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. सो A माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स R क्या है A और ये क्या है टर्म्स B. सो R1 डॉट स्क्वायर, ओके, माइनस ट्वाइस इंटू R डॉट इंटू M1R डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस B स्क्वायर मतलब B मतलब ये है M1 स्क्वायर R डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 स्क्वायर. सो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द फॉर्मूला ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर एंड A माइनस B होल स्क्वायर, हियर we'll get this much of the equation, that is A square plus twice A into B plus B square plus half into M1 A square minus twice A into B plus B square. सो ये तुमको आता है A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट को एक्सपांड किया मैंने. A स्क्वायर मीन्स R1 डॉट स्क्वायर, R डॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस R डॉट इंटू A ट्वाइस A इंटू B प्लस B स्क्वायर मीन्स M2 स्क्वायर R डॉट स्क्वायर M1 प्लस M2 होल स्क्वायर प्लस हाफ M2 मीन्स A स्क्वायर माइनस B A स्क्वायर R2 R डॉट स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB माइनस ट्वाइस R डॉट इंटू M1 R डॉट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस B स्क्वायर मीन्स M1 स्क्वायर R डॉट स्क्वायर M1 प्लस M2 होल स्क्वायर. तो ये मैंने जस्ट फॉर्मूला लगाया है A प्लस बी होल स्क्वायर और A माइनस बी होल स्क्वायर. ये इजी फॉर्मूला है. A की जगह क्या है वहां पे R डॉट और B की जगह क्या था वहां पे M2R या M2R डॉट M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. तो इस तरीके से लगा. नाउ दिस इज हाफ M1, जस्ट आई एम मल्टीप्लाइंग हाफ M1 टू द ऑल द टर्म्स इन द ब्रैकेट. सो ये हाफ M1 कॉमन है तो मैं सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ हाफ M1 को. हियर ऑल्सो हाफ M2 इज इन आउटसाइड द ब्रैकेट, सो आई विल मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स. तो ये हाफ M1 को मैं सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये इस हाफ M2 को भी मैं सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो देन आई विल गेट हाफ M1 इंटू R डॉट स्क्वायर प्लस, देखो हाफ M1 हाफ मतलब 2 कैंसल आउट. ओके, अगर हाफ M1 को मल्टीप्लाई करूंगा सेकंड टर्म से तो 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या M1 R डॉट M2 R डॉट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस यहाँ पे हाफ M1 से डिवाइड करूंगा, हाफ M1 से मल्टीप्लाई करूंगा दिस टर्म को, तो M1 दिस M1 M2 स्क्वायर R डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2 है तो ट्वाइस M1 प्लस M2 होल स्क्वायर. सो हाफ M1 से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म को. यहां पर भी मैं क्या करूंगा, हियर ऑल्सो आई विल मल्टीप्लाई दिस टर्म टू होल 3 टर्म्स. सो हाफ M2 R डॉट स्क्वायर माइनस हाफ M2 2 और दिस 2 इज न्यूमरेटर, दिस 2 इन डिनोमिनेटर, 2 कैंसिल आउट. सो M2 इंटू R डॉट M1 R डॉट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, जस्ट हाफ M2 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म को भी हाफ M2 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो M2 M1 स्क्वायर R डॉट स्क्वायर डिवाइड, ये 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर ट्वाइस M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी. तो इतना बड़ा एक्सपेंशन किया, ये इजी है. जो टर्म बाहर दिख रहे हैं उसको ब्रैकेट के सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, जो टर्म बाहर दिख रहे हैं उसको ब्रैकेट के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो. तो इस तरीके से. नाउ लुक एट दिस टर्म, नाउ लुक एट माई माउस एरो एंड लुक एट दिस टर्म M1 R डॉट M2 R डॉट M1 कैपिटल R डॉट M2 स्मॉल r डॉट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. यहाँ पे भी देखो M1 M2 कैपिटल R डॉट स्मॉल r डॉट डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. तो ये जो टर्म है नेगेटिव और ये जो टर्म है पॉजिटिव, ये सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स बट विथ ऑपोजिट साइन, दे कैन कैंसल आउट. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स, बिकॉज देखो
m1 m2 capital R dot small r dot, here is also m1 m2 capital R dot small r dot, divide में क्या है m1 plus m2 m1 plus, so these two terms are similar but opposite signs, so they can cancel out, so वो cancel out होंगे. So cancel out होने के बाद ये जो दो टर्म्स है अभी ये दोनों टर्म कैंसल आउट हुए, तो बचा क्या अभी L इज इक्वल टू हाफ m1 r डॉट स्क्वायर प्लस m1 m2 स्क्वायर r डॉट स्क्वायर ट्वाइस m1 m2 स्क्वायर, ये वाली टर्म लिखा प्लस दिस टर्म हाफ m2 r डॉट स्क्वायर प्लस ये लास्ट टर्म लिखा m2 m1 स्क्वायर r डॉट स्क्वायर ट्वाइस m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस ur पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो ये दो टर्म्स है, दो टर्म्स, these two terms. Okay, in these two terms I can take common half r dot square. Half r dot square is common for these two terms, so I can take half r dot square common. So in bracket it remain m1 plus m2, and here is also okay. Here is also in denominator, that is twice m1 plus m2 square, and here twice m1 plus m2 whole square is common. Okay, in denominator these two denominator is same, so I can write one denominator. Okay, so these two terms, the denominator is same, so in these two terms, look at these terms underlined by blue line, these two terms denominator is common, twice m1 plus m2 whole square, twice m1 plus m2, so I can write as a common denominator twice m1 plus m2 whole square. Now in numerator m1 m2 square into r dot square, m1 m2 square into r dot square plus m2 m1 square into r dot square. Okay, and now here in red line terms, okay, term underlined by red line, I can take half r dot square common, half r dot square common in bracket m1 plus m2. अब देखो न्यूमरेटर में देखो m1 m2 कॉमन है, यहाँ पे m1 m2, यहाँ पर भी m1 m2. Okay, I can take m1 m2 common, so after taking m1 m2 common, here m2 remain, after taking m1 m2 common, here m1 remain, so in numerator I will take m1 m2 common. Okay, so again I am writing the same term here, L is equal to half r dot square m1 plus m2 plus m1 m2 square r dot square plus m2 m1 square r dot square divided by twice m1 m2 square minus here. So here from this term m1 m2 and r dot square is common, m1 m2 r dot square is common, m1 m2 r dot square. So after taking m1 m2 r dot square common, here remain m2, because यहाँ पे देखो m1 m2 एक m2 ले लिया तो एक m2 बच गया यहाँ पर. ओके, m1 m2 r डॉट स्क्वायर कॉमन, तो एक m2 बच गया. यहाँ पे m1 m2 r डॉट स्क्वायर कॉमन लिया तो एक m1 बचा, सो ब्रैकेट में क्या बचा m1 प्लस m2. सो यहाँ क्या है m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, तो एक m1 प्लस m2 और एक इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो देखो यहाँ पर, सो यहाँ पे m1 प्लस m2 और नीचे का दो m1 प्लस m2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ m1 प्लस m2 बचेगा. ओके, सो दिस इक्वेशन आई कैन राइट एज L is equal to half r dot square m1 plus m2 plus m1 m2 r dot square divided by twice m1 plus m2, क्योंकि स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि m1 plus m2 और इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, बिकॉज यहाँ दो m1 plus m2 थे तो एक कैंसिल हो गया m1 plus m2 के साथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो एक ही बचा m1 plus m2. सो L is equal to half r dot square m1 plus m1 m2 twice m1 plus m2 r dot square. So it can be written as, तो देखो रीअरेंज कर रहा हूँ, L इज इक्वल टू हाफ r डॉट स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस हाफ मैंने आगे लिख दिया m1 प्लस m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इन ब्रैकेट में लिख दिया, यहाँ पे r डॉट स्क्वायर है और हाफ मतलब ये जो नीचे दिख रहा है ना 2 डिनोमिनेटर में, इसको हाफ लिख दिया. 1/2 मीन्स हाफ और m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, दैट इज r डॉट स्क्वायर. ओके, नाउ अभी देखो हमारे पास दो ही मासेस हैं m1 प्लस m2, वी हैव टू मासेस m1 प्लस m2. ओके, सो m1 इज मास ऑफ अ फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, सो टोटल मास वुड बी कैपिटल M. अगर m1 प्लस m2 को हम कैपिटल M कंसीडर करें, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M, देन कैपिटल M इज वुड बी m1 प्लस m2. m1 is the mass of the first particle, m2 is mass of the second particle. So I can write as m1 plus m2 as capital M. Okay, capital M is total mass of the system. So total of the mass of the system means m1 plus m2. Okay, so define करते हैं हम suppose m is equal to m1 plus m2, total mass of the system, and suppose m1 into m2 divided by m1 plus m2 is called reduced mass of the system mu. ओके, जो ये क्वांटिटी ब्रैकेट में मैंने लिखा m1 into m2 दैट डिवाइडेड बाय m1 plus m2, दैट इज रिड्यूस मास ऑफ द सिस्टम, दैट कैन बी रिटन एज म्यू.
सो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह म्यू लिखेंगे, m1 प्लस m2 की जगह m कैपिटल M लिखेंगे। तो देखो इस इक्वेशन में m1 प्लस m2 की जगह कैपिटल M लिखेंगे और m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह म्यू लिखेंगे, क्योंकि इस जो क्वांटिटी ब्रैकेट में दिख रही है उसको बोलते हैं रिड्यूस मास। ओके, m1 प्लस m2 को बोलते हैं टोटल मास। सो इन प्लेस ऑफ m1 प्लस m2 आई एम रिप्लेसिंग कैपिटल M एंड m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को मैं म्यू लिखूंगा, दैट इज रिड्यूस मास ऑफ दिस सिस्टम। सो आफ्टर राइटिंग इट आई विल गेट L इज इक्वल टू हाफ r डॉट स्क्वायर कैपिटल M प्लस हाफ म्यू r डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी UR। ओके, सो m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 की जगह म्यू लिखा और m1 प्लस m2 की जगह मैंने m रखा। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम मिल गया। इफ सपोज सेंटर ऑफ मास इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग इन यूनिफॉर्मली। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास या तो एक ही पोजीशन पे अड़ा रहता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। सो सेंटर ऑफ मास इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली, मीन्स सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी या तो कांस्टेंट रहती है या फिर वो इसकी वेलोसिटी जीरो रहती है। रेस्ट में मतलब वेलोसिटी जीरो। सो सेंटर ऑफ मास इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली। सो आर डॉट क्या है, दैट इज आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और सेंटर ऑफ मास मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है तो आर डॉट, देखो आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सो आर डॉट क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी। अगर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। सो आर डॉट क्या होगा, जीरो, बिकॉज सेंटर ऑफ मास कैन इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली। सो आर डॉट कैन बी जीरो। अगर आर डॉट जीरो है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये टर्म जीरो हो गई तो क्या बोलेंगे हम, L इज इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस म्यू आर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने शुरुआत की थी दो पार्टिकल से और हम एंड हुए हैं एक पार्टिकल पे। देखो एक काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर, म्यू मींस रिड्यूस मास, ये मास है, ये वेलोसिटी है, माइनस है पोटेंशियल एनर्जी। सो लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल है। सो ये काइनेटिक एनर्जी में एक ही मेरे को मास दिख रहा है म्यू, दैट इज रिड्यूस मास, और एक ही मेरे को वेलोसिटी दिख रही है आर डॉट। इसका मतलब हमने शुरू किया था दो मासेस से और दो वेलोसिटीज से और एंड हुआ है हमारा एक मास पे और एक वेलोसिटी पे, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी भी एक ही दिख रही है मुझे, यू आर। मतलब हमने स्टार्ट किया था दो मासेस और दो वेलोसिटी से। सो दो मासेस और दो वेलोसिटी, दो मासेस कंबाइन होकर सिर्फ एक ही मास रह गया, दैट इज रिड्यूस मास म्यू। दो वेलोसिटी कंबाइन होकर सिर्फ एक ही वेलोसिटी रह गई, आर डॉट। आर डॉट इज वेलोसिटी dr by dt। इसका मतलब हमने शुरू किया था दो मासेस पे और हम खत्म कर रहे हैं रिड्यूस मास पे, म्यू। म्यू यानी सिंगल मास, दैट इज रिड्यूस मास। हमने शुरू किया था वेलोसिटी से, ओके, दो वेलोसिटी से, और वी आर एंडेड विथ ओनली वन वेलोसिटी, दैट इज आर डॉट, एंड दिस इज ओनली वन पोटेंशियल एनर्जी यू आर। इसका मतलब हमने शुरू किया था दो मासेस से और सिर्फ हमने एंड पे आया सिर्फ एक ही मास, रिड्यूस मास म्यू। हमने शुरू किया था V1 V2 दैट इज R1 डॉट और R2 डॉट से और एंड पे आया सिर्फ R डॉट, माइनस पोटेंशियल एनर्जी भी एक ही है। इसका मतलब वी हैव स्टार्टेड विथ टू masses, two velocities, but we are ended with one mass and one velocity. It means we have started with two particles, but we have ended with only one particle. It means that two body problem को reduce कर लिया हमने one body problem में. This is looking like a Lagrangian of the single particle having mass mu, that is reduced mass, and having the position vector r, it means the velocity r dot. We have started with the two body problem and we are ended with the one particle. We have started with the two particle and we have ended with one particle system. It means that we have reduced two body problem into one body problem. So in this way we can reduce the two bodies problem into one body problem. Start किया था दो masses के साथ, एंड हुआ सिर्फ एक मास पे, रिड्यूस मास पे। स्टार्ट किया था दो वेलोसिटीज के साथ, एंड हुआ आर डॉट पे, ओनली एक पोजीशन वेक्टर पे, आर पे। इट मींस दैट दिस वी हैव स्टार्टेड द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम फॉर टू पार्टिकल्स एंड वी हैव एंडेड विद द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम फॉर द सिंगल पार्टिकल। इट मींस दैट वी हैव रिड्यूस्ड द टू बॉडी प्रॉब्लम्स इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमने टू बॉडी प्रॉब्लम को रिड्यूस किया वन बॉडी प्रॉब्लम में। सो इस तरीके से हमने ये डेरिवेशन देखा।